25% माइलेज की छूट देनी होगी। रनिंग स्टाफ को माइलेज में 75% की छूट देनी होगी। रनिंग स्टाफ को इंटेंसिव घोषित करना होगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम गाजियाबाद के विजयनगर में है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देखेंगे ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का दिल्ली डिवीज़न का बीजीएम हो रहा है। ये सेमिनार का जो मुद्दा है सेफ्टी के मुद्दे को लेकर है, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर है। आज हम जानने आए हैं कि किस तरह की सेफ्टी की बात ये कर रहे हैं, समझने आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ऑल इंडिया रनिंग स्टाफ एसोसिएशन किस तरह का संगठन है और क्या काम करता है सर? ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन रेलवे के अंदर में जो लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट सेंटर काम करते हैं, उनका एक ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत ट्रेड यूनियन का काम रहता है कि जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उसके प्रोडक्टिविटी में वर्कर्स का जो स्टेटस है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए कार्य करना, यही हमारा संगठन का काम। आज का जो दिल्ली डिवीज़न का प्रोग्राम है, इसके अंदर आप लोग सेफ्टी की बात कर रहे हैं। किस तरह की सेफ्टी की बात हो रही है सर? रेलवे adopts many technical advancements in railways. Say for example, when diesel locomotives came into India, the first diesel locomotive's capacity was 300 HP. Now the capacity of diesel locomotive is 5000 HP. The capacity of AC locomotive is now is 1200 HP. The HP horsepower of the train is increasing. The training load is increasing. The length of the train is increasing. The speed of the training is increasing. Whenever any increase is happening in any of these aspects, the workload of the loco pilot is being increased. If single line is made to double line, if I say in single line, if a train is derailed somewhere, then no other train will come to that section. But when it becomes double line, if a train is derailed and fallen on the adjacent line, another train will come on adjacent line. So there is a possibility of a collision whenever a derailment happens on double line. When the advancement is coming like that, there must be increase in safety standards. But such a safety upgradation is not being taken place in railways. When manual operated signals are moving, automatic signals are coming. When manual signals are there, there are many people to operate the signal. There are many people to see the movement of the train. When it has come to automatic, there is nobody to see. Only mechanical or automatic arrangements are there. So something goes wrong, there is nobody to detect. It will end up only in an accident. So whenever this technical advancement is coming, the safety standard must have been increased. We are telling about the Kavach, but the budget allocation for installing the Kavach is very, very less. If the allocation continues like that, it will take 50 years to provide Kavach everywhere in India. The Kavach is also not a foolproof system. Again, there is some lapses are there. But that is the position. So whenever the speed increases, whenever the load increases, when the system changes, their safety standard must be reviewed. Such a safety review is not being done in railways. That is why nowadays accidents are increasing. They say number of accidents are reduced, but because of the increase in speed, load and frequency of trains, the consequences are too much. So say if you analyze the Balasore accident, in that accident, Coromandel Express went on the loop line at a speed of 118 km. Previously, all at the stations, the speed was restricted to 50 kmph. If the speed on the main line on station is 50 kmph, whenever the train takes a diversion to the loop line, the loco pilot will apply emergency brake.
the collision might have done at a speed of 25 or 30 kmph. Then there will not be any derailment. But because of the speed is 118, driver applied the emergency brake, but the speed did not reduce. So the entire coach derailed. And the 10th coach was derailed and it was fallen on the 18th coach of the Bangalore bound express. So 295 people died. If this accident has been taken place just 20 seconds in advance, this derailed coach might have fallen in front of the Bangalore express. Then the casualty might have gone beyond 1,000. But what I'm saying that when the speed is increasing, double line is coming, another train is frequency is increasing, in such a way the consequences are unbearable. So a safety review in all aspects is a emergency need at present. And now we feel that for every accident, the railway is increasing the penalty. They have nothing else, no safety improvement, but they feel that by increasing the penalty on the loco pilots and all other stuff, safety can be ensured. But this type of penalties or surveillance can only reduce accidents and omissions that are being done willfully. Say for example, if a camera is installed in road, then there will be reduction in traffic rule violations because traffic rules are being violated willfully. But accidents are not such like that. It is unexpected. Accidents cannot be avoided due to surveillance. Those who are willful violations can only be avoided by surveillance. Say for example, this part is happening because of micro sleep. The loco pilot is getting a 2 or 3 seconds sleep on duty because they are continuously booked for 4 nights or 5 nights like that. So there is every chance it's an unintentional micro sleep. Nothing can be done with the camera. Nothing can be done with severe punishment. Only the mental stress can only be increased. So whenever this increase of the penalties or surveillance can only be increase the stress of the workers and fatigue of the workers when there is a failure in the system. That system is total review of the safety is required. Otherwise, the railway will go into a big trouble. That is, we are day by day we are seeing the symptoms of that. ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में जो भी व्हीकल का ऑपरेशन होता है वो सेफ्टी नियमों के अंतर्गत ही किया जाता है. जैसे आप रास्ते के ऊपर का जो सेफ्टी है उसके भी सेफ्टी नियम है, वैसे ही रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें गाड़ी का परिचालन ये सेफ्टी नियमों के अंतर्गत होना चाहिए. उसके लिए नियम बनाए गए. होता क्या है कि जब गाड़ियों के परिचालन में नियमों को बाईपास करने का प्रयास होता है जिसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना होती है. पर होता क्या है कि उस नियम का बाईपास करने के लिए बाध्य क्यों इसने किया है, ये बात कौन साबित करेगा. नियम बनाने वाले अगर नियम तोड़ने के लिए बोलते हैं तो वो राइटिंग में ऑर्डर नहीं देते, वो दबाव बनाते हैं. तो हमारा संघर्ष ये है कि साहब आप नियम अगर बनाए हैं तो उस नियम से हमको कार्य करने दो. यही हमारा मकसद है, सेफ्टी को हमको ऑब्जर्व करने दो. हम देख रहे हैं कि लगातार रेल हादसे बढ़ रहे हैं. इसकी मुख्य वजह क्या है सर? देखो, हादसे इक्विपमेंट फेल्योर से भी होते हैं, हादसे सैबोटेज की वजह से हो सकते हैं, हादसे सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के साथ में भी होते हैं, और स्ट्रेस वर्क के कारण भी होते हैं. अब बात आती है कि हादसों का कौन से टाइप का हादसा है, उसकी ग्रेविटी और उसका इन्वेस्टिगेशन. तो वो इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि क्या ये इक्विपमेंट फेलियर का है, क्या वो टेक्निकल फेलियर में आ गया, क्या इसके मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ गया, तो भाई ह्यूमन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी वो इन्वॉल्व हो जाता है. क्या ये ओवर स्ट्रेस के कारण हुआ, तो भाई ओवर स्ट्रेस क्यों हुआ, क्या उसको ज़बरदस्ती काम करा गया या शॉर्टेज ऑफ मैन पावर की वजह से हुआ. तो ये हादसा जो है, और नहीं तो फिर पता चला कोई सैबोटेज किया है,
तो सैबोटेज बोलो तो वो एंटी नेशनल एक्टिविटी में आ जाता है। तो ये हादसे की ग्रेविटी अभी बढ़ी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर मेंटेनेंस फेलियर में भी बात, अभी सीआरएस की जो रिपोर्ट आई, आपने उधर जलपाईगुड़ी साइड में जो हुआ था उधर भी देखा कि सीआरएस के इंक्वायरी में ही बात आई कि भाई कन्फ्यूजन जो अथॉरिटी कौन सी दिया गया है उसमें क्या लिखना है क्या नहीं, तो ये भी एक बात थी। अब बात आती है कि इसको रोका कैसे जाए। तो जहाँ पे ये इक्विपमेंट ऑपरेशन सिस्टम है उसको इन कैमरा रखना चाहिए। क्या जो ऑपरेट कर रहा है वो गलत तरीके से ऑपरेट तो नहीं किया, क्योंकि जैसे एक लोको पायलट को गाड़ी चलाते समय कैमरे लगा के रखे गए कि वो बराबर का गाड़ी चलाते समय कहीं सो तो नहीं रहा। तो भाई जो रात में काम कर रहा हो स्टेशन पे, क्या उसको नींद नहीं आ सकती क्या? तो वहाँ पर आप कैमरे लगाओ। जो रिले रूम है उसको ताला लगा के रखना है, उसको भी कैमरे में रखो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई जाकर वहाँ पे सैबोटेज कर लिया या शॉर्टकट मेथड का अपना लिया, तो उसके वजह से भी हादसे हो सकते हैं। तो ये हमारा रेलवे को यही करना है कि फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। अभी रेल मिनिस्टर साहब ने कवच बोला है। कवच ये कंसेप्ट जो है वो ऑटो वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी बॉम्बे में जो मोटर EMI चलती ना, उसमें ऐसे ऑलरेडी पहले से था। अभी इसको और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया गया है, अच्छी बात है, पर वो उसको इम्प्लीमेंट होने में, एग्जीक्यूट होने में और टाइम लगेगा। बात है कि पैसा सही जगह पे खर्चा होना चाहिए। अभी ये फॉग सिग्नल डिवाइस जो रेलवे ने लगाया है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि फॉग सिग्नल डिवाइस लोको रनिंग स्टाफ को किसी तरह का कोई भी सेफ्टी के लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि फॉग सिग्नल डिवाइस से हमको ये नहीं पता चलता कि सिग्नल का एस्पेक्ट क्या है, सिर्फ डिस्टेंस पता चलता है कितने डिस्टेंस पे, पर हमारा ट्रैक सेफ है कि नहीं मालूम नहीं, हमारा OHE बराबर है कि नहीं मालूम नहीं। आने वाली गाड़ी का लोको पायलट कोई अगर खतरा संकेत देना है तो ठीक है, फॉगी से वेदर में वो FSD के सहारे में अगर 75 km से जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसने लाल दिखाया है तो मैं कैसे गाड़ी रोकूंगा, क्योंकि तो फॉगी वेदर में तो ऐसे डिस्टेंस में दिखता है। तो FSD की जगह जो है रेलवे को चाहिए कि ट्रैक सर्किटिंग करके रेलवे के लोको कैब के अंदर में सिग्नल रिपीटिंग सिस्टम देना चाहिए। अभी जैसे एरोप्लेन के अंदर में नाइट विजन जैसे गॉगल ये रहता ना इक्विपमेंट, या फॉगी वेदर में इस इक्विपमेंट लैंडिंग जो करते हैं, तो उस टाइप का ये इक्विपमेंट ड्राइविंग होना चाहिए के लिए इंस्टॉलमेंट करना चाहिए ना, यही हमारा कहना है। रेलवे के अंदर रन ओवर के मुद्दे आ रहे हैं सामने, ट्रैकमैनों के, SNT ग्रुप के, इसको लोकल रनिंग स्टाफ भी उठाता रहा है और भी बहुत सारे संगठन उठाते रहे हैं। ये रन ओवर को सरकार या रेल मंत्रालय रोक क्यों नहीं पा रहा है? Run over, when people are working on the railway track, run over cannot be avoided unless there must be a system to warn the arrival of a train to the track and on which line the train is coming. Presently, the track maintenance, wherever the track is not being dismantled, all other works in the track is being done without a line block. That line block means when train is going on. This is responsibility of the track maintainer to clear the track before the approach of the train. In that case, nowadays the problem faced by trackmen is that the speed of the train has increased. So the train will come to him much earlier than he was expecting that. When he is doing some work, he requires some time to procure his tools and move away from the track. By the time the train is coming, that is the problem they are facing. There is one system has adopted, Rakshak they say, but that is not given to everywhere. Previously, in every gang there are 13 to 20 people. So in those days, they were able to post a person to 500 meters or 1,000 meters in advance to give a whistle call to them, a train is approaching. And the frequency of the train was very less, only 5 or 10 trains in a daytime. Then it is not a problem, they have ample time to work. Now, train is running after 5 minutes or 10 minutes gap. The time is not there for the trackman to do their work, and they are compelled to do their work. Previously I told 13 to 20 gangmen people were in one gang. Now it is 5 to 10. So they have to complete the work
without time. Previously there were 1 hour, 2 hour gap is there between trains. They can freely work. Now there is no gap. So their work time increased, workforce reduced, and they are under severe pressure to complete the work before the train come. In that way, they are under immense pressure. So they cannot hear the horn of the train because they are very busy in this work. This is why this runover of track maintenance increasing. Speed increasing, frequency increasing, and time is reduced for that work. These three issues make them vulnerable for our case. आप यहाँ पे अपनी स्पीच में एक बात कह रहे थे रनिंग स्टाफ के वेतन भत्ता की, ये क्या चीज़ है, इसके मसले को थोड़ा समझाया हमें। देखिए साहब, थर्ड पे कमीशन तक लोको रनिंग स्टाफ का वेतन स्तर रेलवे में जितने भी सुपरवाइजर कैटेगरी के वेतन स्तर के ऊपर में था। ग्रुप सी के उनके पे स्केल के बराबर में किसी कैटेगरी का नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बता दूं कि थर्ड पे कमीशन में हमारा जो फर्स्ट फायरमैन था उसका पे एएसएम से ज़्यादा था, एओएम से ज़्यादा था, टीसी से ज़्यादा था। लेकिन आज वही फर्स्ट फायरमैन जब एलपी के तौर पे काम कर रहा है तो उसका वेतन स्तर जो है L2 में है और एएसएम का पे स्केल है L6 में है, राइट। आज हम लोग का कार्य जो है इसमें रनिंग स्टाफ एक ऐसा कैटेगरी है, उसमें असिस्टेंट से लेकर लोको पायलट तक उनको CNW का पढ़ाया जाता, उनको इंजीनियरिंग का पढ़ाया जाता, उनको लोको का पढ़ाया जाता, उनको सेफ्टी का पढ़ाया जाता, ऑपरेटिंग रूल्स का पढ़ाया जाता, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का पढ़ाया जाता। अब ये सब इतना किसी और कैटेगरी को नहीं पढ़ाया जाता, उनके ट्रेनिंग में नहीं है। सेफ्टी रूल्स पढ़ाया जाता, उसके लिए हमको स्पेशल मेडिकल भी देना पड़ता है। हाई स्पीड ट्रेन के लिए हाई स्पीड सुपर साइको टेस्ट देना पड़ता है। ये सब क्वालिफिकेशन लेने के बाद में भी हम लोगों को पे स्केल 6 और जो एक कैटेगरी के लिए एक टेक्निकल स्किलनेस के लिए साथ में काम करता है वो L9 के पे स्केल में है। और जो राजधानी 160 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है वो L6 के पे स्केल में है। तो इससे बड़ी वेतन विसंगति दुनिया के किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में बता दीजिए। हमारी लड़ाई इस बात की है कि आपको हमारे से क्या खुन्नस है, क्या हमने प्रोडक्टिविटी नहीं दिया, क्या रेलवे के प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी नहीं हुई। आप देखो कोरोना पीरियड में बाकी सेक्टर डाउनफॉल रहा है, रेलवे ने उस समय 1,87,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। हम देश के प्रति अगर वफादार है तो हमारे साथ वफादारी करो, हमारे साथ दुश्मनी मत रखो। एक तो हमारे बारे में एक प्रिजुडिस माइंड है कि इसको किलोमीटर अलाउंस दे रहे हैं तो पे स्केल देने की क्या ज़रूरत क्या है। ये इस टाइप की सोच डेवलप किया जा रहा है, नैरेटिव बनाया जा रहा है और हमारी लड़ाई उसके खिलाफ। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बातों को सुना। उन्होंने अपनी बातों में कई मुद्दों को सामने लेके आए हैं। पहली बात तो ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुरक्षा के नियमों के अनुसार परिचालन करना जरूरी है, मगर रेलवे के अधिकारी काम के अधिक दबाव के कारण कई बार सेफ्टी के नियमों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे रेल हादसे होने के खतरे बढ़ जाते हैं और कई बार हादसे हो जाते हैं। इसीलिए लोको रनिंग स्टाफ चिंतित है और चाहते हैं कि सुरक्षा के नियमों के अनुसार रेलवे का परिचालन किया जाए, जिससे रेल यात्रियों और रेल कर्मियों की सुरक्षा की जा सके। और दूसरी बात, रेलवे ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन, सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की रन ओवर में मौतों की खबरें आम होती जा रही हैं। इन कर्मचारियों की मौतों को रोकने के लिए रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनरों के लिए रक्षा कवच की मांग कर रहे हैं। सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के कर्मचारी कई सालों से वॉकी टॉकी की मांग उठाते आ रहे हैं। वॉकी टॉकी से रेल की आने की सूचना ट्रैक पे काम करने वाले कर्मचारियों को समय अनुसार पता चले, ताकि कर्मचारी समय रहते रेल की पटरियों से हट जाएं और उनकी जान बचाई जा सके। मगर रेल प्रशासन वॉकी टॉकी और सुरक्षा कवच प्रदान नहीं कर रहा है, जबकि रेल प्रशासन को भारतीय रेल यात्रियों और रेल कर्मियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए, लेकिन वे नहीं कर रहा है। इससे एक बात तो साफ है, मौजूदा सिस्टम
मजदूरों और आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए मजदूर अपनी मांगों को लेकर सालों साल संघर्ष करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाजों को सुना नहीं जाता। इससे साफ होता है कि वर्तमान सिस्टम मजदूरों के हितों में काम बिल्कुल नहीं करता। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब तक देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।